شاہ ہاؤس میں آج ایک خاص دعوت کا انتظام ہو رہا تھا اور حویلی میں غیر معمولی رش کا سیلاب ادھر سے ادھر تیاری میں مصروف تھا۔ شاہ ہاؤس کے مکین آج بہت خوش دکھائی دے رہے تھے کیونکہ 5 سالوں کے طویل عرصے کے بعد اس گھر کا واحد وارث اور حویلی کی رونق کا خطاب لینے والا اپنی پڑھائی مکمل کر کے آسٹریلیا کے شہر برسبین سے واپس اپنے پیارے وطن پاکستان آ رہا تھا۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کی تعداد 5 تھی، پہلے 6 تھی، مگر اس گھر کے بڑے بیٹے شاہ فارس کی بیوی شادی کے 13 سال بعد وفات پا گئی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو تعداد 6 ہوتی، مگر تعداد 5 ہندسے پر رک گئی۔ ہر کسی سے محبت کرنے والی گیلانی صاحب کی اکلوتی پیاری لاڈلی اور 2 بھائیوں کی بہن ماں پارا شادی کے 13 سال بعد اولاد جیسی نعمت کو جنم دے کر انتقال کر گئی۔ اس لیے شاہ فارس نے اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے دوسری شادی کے بجائے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی نزاہت کی ذمہ لگائی، جو ان دونوں میاں بیوی نے خوش دلی سے قبول کی۔ شاہ حارث شاہ فارس کے بیٹے بھائی کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جو کہ رانیہ سے 4 سال بڑا تھا۔ نزاہت بیگم نے رانیہ کو حساس سے کبھی کم نہیں سمجھا۔ انہوں نے دونوں بچوں کی تربیت عدل اور محبت سے کی تھی۔ رانیہ نزاہت بیگم کی رضائی بیٹی تھی اور حساس کی رضائی بہن، اس لیے رانیہ نزاہت بیگم کو چھوٹی ماما کہتی تھی اور حارث صاحب کو چھوٹے بابا، جبکہ شاہ فارس کو بابا جان کہا کرتی تھی، اور حسام اس کا اس دنیا میں واحد دوست تھا۔ دونوں میں حد درجہ گیری دوستی اور بے تکلفی تھی۔ اگر رانیہ حسام کے لیے دل ہتھیلی پر رکھتی تھی تو حسام بھی رانیہ کے لیے جان دینے کو تیار تھا۔ شاہ ہاؤس کے یہ 5 بشر زندگی کا خوبصورت دراول چر کر سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جہاں محبت کا سکہ چلتا ہو وہاں سکون حکومت کرتا ہے، یہ بات اس گھر کے لوگوں نے ثابت کر دی تھی۔ نزاہت بیگم اپنے جیٹ فارس صاحب سے کچھ پوچھنے ان کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے سن کر رکی۔ وہ کسی سے فون پر دعوت کے انتظام کو زبردست کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، آلیان صاحب، میرا بیٹا واپس آ رہا ہے، ایسی شاندار دعوت کا انتظام کریے گا، لوگ کہیں کہ واقعی اس گھر کا وارث آیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑنی، میرے بچے کو بہت اسپیشل محسوس کروانا ہے۔ فارس صاحب کی لہجے میں حسام کے لیے محبت دیکھ کر نزاہت بیگم نے اس گھر کے مکینوں کی محبت کو نظر بد سے بچنے کی دعا کی اور اندر داخل ہوگی۔ نزاہت بیگم، بھائی صاحب، وہ ماں پارا آپ کے گھر والوں کو کارڈ بھجوا دیا تھا، آپ بھی فون کر کے دعوت دیں انہیں آنے کے، اور ہو سکے تو آپ رانیہ کو لے کر گیلانی ہاؤس خود جا کر دعوت دے کر آئیں، انہیں اچھا لگے گا۔ فارس صاحب، ارے بھابھی سانس تو لے لیں، وہ ہنس کر بولے تھے، جی ٹھیک ہے، آپ گڑیا سے کہیں وہ تیار ہو کر آ جائیں، آج ہی دعوت دے آتے ہیں۔ وہ فوراً راضی ہو کر بولے تھے۔ وہ رانیہ کو گڑیا ہی کہا کرتے تھے۔ شاہ فارس کی گاڑی گیلانی صاحب کی حویلی کی طرف سفر کر رہی تھی۔ وہ آج رانیہ کے ساتھ اپنے سسرال اور رانیہ کے ننیال جا رہے تھے۔ رانیہ گیلانی ہاؤس بہت کم گئی تھی، گئی بھی کوئی 5-4 مرتبہ ہوگی، حالانکہ اس کے نانا اس پر جان چڑھکتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ رانیہ اپنی 22 سالہ زندگی میں اپنے کزنوں، ماموں، ممانیوں وغیرہ سے 4 سے 5 بار ملی تھی، بس ہاں البتہ اس کے نانا اس کے پڑھائی کے درمیان اس سے اسلام آباد بھی ملنے جاتے تھے اور شاہ ہاؤس بھی ہفتہ چکر لگاتے تھے۔ رانیہ، بابا جان وہ فارس کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ رانیہ 22 سال کی تھی، مگر اس کی سنجیدگی، مستقبل مزاجی اور ٹھہراؤ اسے کم عمر لڑکی کے بجائے ایک سمجھدار باوقار لڑکی دکھاتا تھا۔ وہ فارس صاحب کی طرح تھی، نرم مزاج، سنجیدہ اور سلیقہ مند۔ فارس صاحب، جی بیٹا، وہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور یہ ان کی محبت کا انداز تھا۔ وہ رانیہ کو بے معنی باتوں کو بھی پوری توجہ سے سنتے تھے۔ رانیہ، بابا جی یہ سامی کل آ رہا ہے نا، تو دعوت کیوں پرسوں کی جا رہی ہے؟ وہ حسام کی ٹائم لائن پر پوسٹ دیکھ کر بولی تھی، جس پہ اس نے کل کی تاریخ کا لکھا تھا کہ وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ فارس صاحب، رانیہ میری گڑیا، موصوف آپ کو پاگل بنا رہے ہیں، یہ پرسوں ہی آئیں گے۔ وہ حسام کی شرارت کو جان چکے تھے۔ رانیہ، بابا جان یہ دیکھیں اس کی ٹائم لائن پوسٹ، اگر وہ مجھے پاگل بنا رہا ہے تو ٹائم لائن پہ کیوں شیئر کرتا؟ وہ انہیں موبائل پہ دکھاتے ہوئی بولی تھی۔ فارس صاحب، بیٹا اس نے سب کو مخفی ہائٹ کی ہوئی آپ کو پتا ہے، آپ سے شرارت نہ کرے تو محترم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ رانیہ، اس کو تو میں پوچھتی ہوں، بدتمیز انسان، ہر دفعہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، کبھی جلدی کا بتا کے 2 دن انتظار کرواتا تھا اور کبھی دیر سے آنے کا بتا کے سرپرائز دیتا تھا،
और फिर ड्रामे शुरू करता था। आए तो सही, इस बार नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्सा हो रही थी और साथ में हसाम से बदले का भी सोच रही थी। गिलानी साहब बड़े जागीरदार थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे का नाम अहमद गिलानी था, जिनका सिर्फ एक बेटा था जो ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले 6 साल वकालत पढ़कर वापस आया था। उनका ये बेटा गिलानी खानदान का फख्र और गुरूर था। उसका नाम फहद अली गिलानी है। फहद 28 साल का एक बावकार, खुशशक्ल, ज़ैन और खूबसूरत नौजवान था, जिसने अपनी पढ़ाई के 1 साल बाद अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की और सिर्फ 1 साल में इस्लामाबाद के वकीलों को दांतों चने चबवा दिए। वो फहद अली गिलानी था जिसने सिर्फ 28 साल की उम्र में वकालत में अपने नाम का सिक्का जमा लिया था। बड़े बड़े रिश्वतखोरों को इनकार करके अपनी ईमानदारी से 1 ही साल में 7 केस जीतकर वो इस्लामाबाद के बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ चुका था। अहमद गिलानी की पहली बीवी फहद की पैदाइश के 6 साल बाद फौत हो गई थी, तो उन्होंने दूसरी शादी गुलनाज से की थी। उनसे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए वो फहद को ही अपना बेटा माना करती थी और फहद ने भी गुलनाज बेगम को दिल से माँ का रुतबा दिया था। गिलानी साहब के दूसरे बेटे और अहमद साहब के छोटे भाई रमेश गिलानी के 2 बच्चे थे, फारिया और काशान। फारिया हसाम की हम उम्र थी, जबकि काशान रानिया का हम उम्र ही कोई 1-2 साल का फर्क होगा। फारिया एक खुश शक्ल, शरारती सी 26 साल की लड़की थी। उसने इकनॉमिक्स में मास्टर किया था। अब घर आकर गुलनाज ताई और अपनी अम्मी जुबैदा बेगम का सर खाया करती थी। वो दिल ही दिल में फहद को पसंद करती थी और ये बात वो फहद को बताने में कामयाब हो गई थी, मगर फहद का जवाब सुनकर वो रानिया फारिया से नफरत करने लगी थी, क्योंकि फहद ने कहा था, फारिया मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मगर माजरत के साथ लड़कियों को यूं सरेआम इजहार करना ज़ैब नहीं देता। लड़कियां मोहब्बत ज़रूर करें, मगर अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, क्योंकि लड़कियों की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। रही बात मोहब्बत की, तो मैं 8 साल से रानिया फारिस की मोहब्बत के कैद खाने में दिल के हाथों गिरफ्तार हो चुका हूँ और पिछले 8 सालों से इस कैद को बहुत खुशी से काट रहा हूँ। गिलानी साहब की हवेली में आज ईद का समा था, क्योंकि उनकी बेटी माँ पारा के शोहर और बेटी आए थे। गिलानी साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि वो रानिया को एक लम्हे भी चुप रहने दें। वो इन्हें बोलती हुई ही अच्छी लगती थी। वो रानिया से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल माँ पारा जैसी थी और माँ पारा से उनकी मोहब्बत को सब ही जानते थे। उनकी जादूगर जैसी मिसाल थी, जिसकी जान एक तोते में बसती है। इसी तरह गिलानी साहब की जान माँ पारा में बसती थी। उनकी मौत पर उनका दुख बहुत गहरा था। इस दुख को ख़त्म रानिया ने किया था। वो माँ पारा की तरह ही अपनी अकलौती नवासी रानिया फारिस से मोहब्बत करते थे, इसलिए जब जब गिलानी साहब की हवेली में रानिया के कदम पड़ते, उनकी आंखें रानिया के सिवा बाकी सबको नज़रअंदाज कर दिया करती थी। रानिया अपने नाना की मोहब्बत को अपने लिए फ़ख्र माना करती थी और उनकी मोहब्बत का एहतराम करती थी। ये वो दुनिया के 5 इंसान थे जिनसे रानिया बहुत मोहब्बत करती थी। बाकी 4 इसके फैमिली मेंबर थे। काशान यूनी से आने के बाद जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो अपने दादाजी के कह सुनकर उसे सेकंड में समझ आ गई कि आज कौन आया है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट दौड़ गई और वो लाउंज में दाखिल हुए और बोला, काशान, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ टू बी अफ्रेड, एनी स्पेशल रीजन? वो शरारत से कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। रानिया, यस मच स्पेशल। रानिया एक अदा से मुस्कुराकर बोली। काशान फारिस साहब से मिलने के बाद अब रानिया के साथ वाले सिंगल सोफे पर बरजमान हो चुका था। काशान, और क्या कर रही हो आजकल? रानिया, ग्रेजुएशन के बाद आर्ट्स में दिलचस्पी थी, बस आर्ट्स गैलरी और पेंटिंग्स वगैरह तक महदूद है जिंदगी। तुम बताओ? काशान, मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लास्ट ईयर में धक्के खा रहा हूँ। वो खासा बदमिजाज होकर बोला था, क्योंकि जितने शौक से उसने इस फील्ड में कदम रखा था उतनी ही जल्दी उकता गया था। कुछ लोग एक काम मुसलसल जारी नहीं रख पाते, वो बेजार हो जाते हैं। काशान भी उन्हीं में से था। रानिया, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ फ्यूचर? काशान, फ्रूट बेचने का इरादा है, एक ठेला खरीदूंगा और फिर एक साथी भी ढूंढूंगा जिसके साथ मिलकर काम कर सकूं। विल यू बी माई बिजनेस पार्टनर? वो शरारत से अपने मजाक में रानिया को शामिल कर रहा था। रानिया, यू डू नॉट हैव टू एक्सपेक्ट सीरियसली, वो हंसती हुई बोली थी। तभी अंदर आते शख्स के कदम साथ साथ दिल में भड़काता था।
क्योंकि यह शख्स इस दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी का तगमा इस हंसी को देता था। दुनिया के सारे सर एक तरफ और फहद के लिए रानिया की हंसी हुई आवाज एक तरफ। आज काफी वक्त के बाद उसे देख रहा था जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा था। फहद, अस्सलाम वालेकुम फारिस अंकल, कैसे हैं आप? वो उनसे बहुत गर्मजोशी से मिला था। उनसे दोस्ती उसकी बहुत ज्यादा थी। फारिस साहब भी फहद से बहुत दोस्ताना ताल्लुक रखते थे, क्योंकि फारिस साहब की फहद के साथ दोस्ती सबको ही मालूम थी। वो दोनों घंटों साथ बैठ के बातें करते। दोनों हम मिजाज हम शौक इंसान थे। 2 दिन बाद रानिया काले लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हमेशा की तरह कंधों पे लिबास से मिलती शाल ओढ़ रखी थी। वो शाल को हमेशा अपने लिबास का ऐसा बनाती थी। रानिया सबसे मिलने के बाद अब हाल में चक्कर काट रही थी। ये इसके इंतजार करने का तरीका था और अब इंतजार हसाम को हो रहा था, जिसके लिए शाह हाउस दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिल खोल कर इस दावत पर दौलत भगाई गई थी। रानिया का हाल में चक्कर काटते हुए देखकर फहद उसकी तरफ चले आए। आज तो फहद भी दिल से तैयार हुए थे, क्योंकि उनका जिगरी यार वापस आ रहा था। फहद 3 पीस सूट में मलबूस सलीके से बालों को बनाते हुए हर तरह से पुरकशिश लग रहे थे। हाल की कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसने फहद की तरफ नजर ना उठाई हो। फहद, रानिया, लगता है आज काफी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। रानिया, फहद, आप तो जानते हैं हसाम के बिना हम सब कैसे हैं। इसके वापस आने के लिए हम सब ने 5 साल इंतजार किया है। फहद, जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, वैसे प्यारी लग रही हैं आप। रानिया, शुक्रिया फहद, वैसे आप भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं। रानिया फहद को फहद ही कहती, हालांकि वो इससे बहुत बड़े थे। उसके बाबा फहद कहते थे, तो इसलिए वो भी फहद ही कहती थी। फहद, बहुत शुक्रिया, बस आपकी नज़र करम है। इसके लिए रानिया का ये जुमला कहना क्या था, ये शायद रानिया कभी नहीं जान सकती थी। अचानक से शोर उठा कि हसाम आ गया। रानिया फौरन दरवाजे की तरफ चली गई। रानिया ने हसाम से नाराजगी अभी तक खत्म नहीं की थी। कल पार्टी के बाद से लेकर हसाम इसको मना रहा था, मगर वो भी इस बार कमाल की अदाकारी कर रही थी। उन दोनों की नोक जोक से शाह हाउस की रौनक बहाल हो गई थी, जो कि कुछ सालों से कहीं गुम हो गई थी। हसाम, रानी यार दरवाजा तो खोलो। वो इसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। रानिया जी, कौन है आप? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराकर बोली थी। हसाम, मेरा तारुफ ये है कि मैं हसाम हारिस हूँ। मेरा काम यह है अपनी तारीफ करवाना। कोई बदनसीब ही होगा जो मुझ जैसे हैंडसम और वजाहत से भरपूर 26 साल नौजवान को पसंद नहीं करता होगा। बाकी मेरा काम धंधा ये है कि मैं एक कपड़े वाली फैक्ट्री का मामूली सा मालिक हूँ। वो एक ही सांस में सब बोल गया था। रानिया, बस करो ड्रामेबाज, अब आ जाओ, मैं आ जाती हूँ नाश्ते पे। वो अंदर से हंसते हुए कह रही थी। हसाम, ओके, वही आर यू वेटिंग? नज़ात बेगम ने आज सारा नाश्ता खुद बनाया था। आज उनका घर खुशियों से भरा लग रहा था। वो दिल ही दिल में नजर बद से बचने की दुआएं मांग रही थी। फारिस साहब और हारिस साहब तो फैक्ट्री चले गए, जबकि हसाम रानिया को लेकर निकल गया। नज़ात बेगम को मालूम था अब कुछ दिन रानिया सुकून नहीं होगा, क्योंकि ना खुद सुकून से बैठेगा ना उसे बैठने देगा। हसाम, रानिया पहले कहाँ चले, फहद को पिक करने या गैलरी? रानिया, आर्ट गैलरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। फहद से बोलो, कहो वो खुद हमें ज्वाइन कर लें गैलरी में। वो उसे बताने के साथ एक अदद मशवरा भी दे रही थी। हसाम, बहुत बुरी हो तुम, आई हेट यू। वो मसनूई नाराजगी दिखाते हुए फहद को टेक्स्ट कर रहा था। रानिया, तुम बहुत अच्छे हो, रियली लव यू। वो भी आखिर उसकी बहन थी। फहद को हसाम का टेक्स्ट मिला था कि रानिया की गैलरी आ जाओ, हम दोनों वही हैं। फहद की कार की स्पीड के साथ साथ उसकी दिल की धड़कन भी तेज थी। न जाने क्यों जितनी बार वो इस लड़की से मिलता था, दिल यूं ही उसके काबू से बाहर हो जाता था। वो मोहब्बत के इस अलमिया को समझने से कासिर था। कहानी जारी है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। कहानी पढ़ने के दौरान गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत ख़्वाह है, क्योंकि मेरी अपनी ज़बान पश्तो है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।